Hello and welcome back to another exciting video on CS Circuit. Well, it's about Computer Science Grade 9 और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 6 इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग को। बेसिकली इस वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज को डिस्कस किया गया है, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड एज वेल। सो गेट सेटल डाउन, ग्रैब योर नोट्स एंड पेन and let's start and make this learning session interactive. Okay, so here you go. MCQ number 1 is, what does responsible use of hardware entail? Option number B is right, treating computer equipment with care and respect. Basically इसकी वजह से जो आपकी डिवाइस है उसकी जो उसकी लाइफ टाइम है वो भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, और उसके अलावा इट विल फंक्शन प्रॉपरली। MCQ number 2 is, which of the following is an example of appropriate use of software? Option number B is right. Regularly updating software to the latest version, it will improve its performance and enhance security as well. Okay. MCQ number 3 is, safe use of digital platform includes. Option number B is right, using strong unique passwords for each online account. Basically, it will less the risk of unauthorized access. Okay. MCQ number 4 is, which of the following is an example of inappropriate software use? Option number C is right, modifying software code without permission from the developer. Basically ये एक illegal activity है, ठीक है, और इसके अलावा it's against the violation of software licensing agreements as well, और इसकी वजह से जो है वो bug increase होंगे, ठीक है, security issues भी होंगे। MCQ number 5 is, which of the following is a potential harmful effect of social networking? Option number B is right, facilitating cyberbullying and harassment. Basically fake accounts को create करना to impersonate someone or to give someone threats. Okay, so ये एक cyber crime है, ठीक है। MCQ number 6 is, how can fake news be harmful in the context of computing innovations? Option number B is right, it can manipulate public opinion and spread misinformation, ठीक है। Basically it will influence people beliefs, attitudes and behaviors as well। MCQ number 7 is, in what way can social networking platforms positively impact businesses and entrepreneurs? Option number C is right, by providing a platform for marketing, customer engagement and networking। MCQ number 8 is, what is one potential beneficial effect of social networking platforms? Option number C is right, increased connectivity and networking opportunities। अगर हम बात करें social media platforms की, like Facebook, Twitter or Instagram, basically they have revolutionized the way people connect and interact online। information sharing हुआ हो, वो professional opportunities ही क्यों ना हो, ठीक है, so they play a vital role। MCQ number 9 is, what is an ethical concern related to computing? Option number C is, privacy breaches and data misuse। जैसे कि हम टेक्नोलॉजी जो है यूज़ करते हैं, ठीक है, बेसिकली इट हैंडल एंड स्टोर्स आउट आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। व्हेन वी यूज़ आवर स्मार्ट डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर और स्मार्टफोन अलॉन्ग विद इंटरनेट, ठीक है, हम इंटरनेट को एक्सेस करने चाह रहे होते हैं, तो बेसिकली हमारा जो डेटा है वो कलेक्ट हो रहा होता है, ठीक है, एंड इट्स शेयर्ड विदाउट आवर कंसेंट, सो दैट्स वाई। MCQ number 10 is, what is a cultural impact of computing? Option number B is right, homogenization of global culture with a single dominant culture। Basically computing have facilitated global connectivity leading to cultural exchange, cultural homogenization, okay, uh, globalization, spreading of ideas, values, beliefs across borders। MCQ number 11 is, how does computing contribute to economic practices? Option number C is right, it automates tasks leading to do job displacement but also creating new job opportunities। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रोबोटिक्स की, ठीक है, सो दे हैव रेवोल्यूशनाइज इंडस्ट्रीज बाय अडॉप्टिंग रेपिटेटिव टास्क, increasing efficiency and reducing cost as well, and remote work is also a great example of computing and economic practices as well। Okay, so MCQ number 12 is, which of the following is a personal benefit of computing in healthcare?
Option number C is right. Improve telemedicine in healthcare accessibility. Basically, it has improved patient care. Telemedicine की अगर हम बात करें, it allows patients to consult with healthcare professionals remotely. Okay, especially अगर हम rural areas की बात करें, ठीक है, faster diagnosis and treatment. Alright, so MCQs हमारी यहाँ पे end होते हैं. Now we will discuss short question answers. So let's start. Question number 1 is illustrate the responsible use of computer hardware by an individual. So hardware का जो usage है, like every individual responsibility is to keep it clean and well maintained. Okay, shut down it properly. कोई जो है वो हमने फोकस करना होता है कि हमारा सिस्टम या हमारा मोबाइल फ़ोन कहीं पे गिर ना जाए, कहीं पे डैमेज ना हो जाए, ठीक है. एंड रेगुलरली अपडेटिंग सॉफ्टवेयर एज वेल्स एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को यूज़ करना, ठीक है. उसके अलावा डेटा, अपने जो डेटा है हमारा इंपॉर्टेंट डेटा, उसको बैकअप करना, ठीक है, ताकि आप किसी मेजर लॉस से बच सकें. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ what does appropriate software use entail? Appropriate software use basically entails updating software regularly for security and performance improvements. अथराइज कॉपीज़ जो है वो सॉफ्टवेयर की यूज़ करना, ठीक है. कोई ऐसे जो है वो क्रैक्ड वर्जन्स को या पायरेसी को जो है वो अवॉइड करना, ठीक है. उसके अलावा एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करना, ठीक है. Question number 3 is how do you stay safe while conducting data searches online? अच्छा, आप जो है वो ऑनलाइन किस तरह से सेफ़ रह सकते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं. बेसिकली आप ऑनलाइन डेटा सर्च को यूज़ करते हुए, लाइक आपने जो है वो रेप्यूटेबल सर्च इंजन्स को यूज़ करना है, ठीक है. उसके अलावा आपने जो है वो सस्पिशियस लिंक्स जो हैं या एडवर्टाइजमेंट्स जो होती हैं, आपने उन पर क्लिक आउट नहीं करना. नो नीड टू जस्ट एक्सप्लोर देम. ओके. बेसिकली दीज आर बेसिकली एडवेयर. ओके. सो वेबसाइट को ऑथेंटिसिटी को जो है वो वेरीफाई करना. उसके अलावा सिक्योर कनेक्शंस को यूज़ करना, ठीक है. और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में जो है वो अपग्रेड रखना. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ एक्सट्रैक्ट एंड एनलिस्ट सम की एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल सोशल नेटवर्किंग. रिस्पॉन्सिबल सोशल नेटवर्किंग के लिए बेसिकली इट इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाय एडजस्टिंग प्राइवेसी सेटिंग्स. ओके. उसके अलावा दूसरों की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. उसके अलावा जो है वो साइबर बुलिंग या हरासमेंट को जो है वो अवॉइड करना, ठीक है. उसके अलावा जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसको शेयर करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट इट्स वैलिड. ओके. अदरवाइज इट विल बी अ साइबर क्राइम. एंड क्वेश्चन नंबर 5 is sketch the positive impacts of social networking in today's society. First one is global connectivity, information sharing, community building, business opportunities. अगर हम बात करें, हमने MCQ में भी बात की थी, वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट इज़ आल्सो रिमोट वर्क. ओके. उसके अलावा आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं कहीं पे भी इंटरनेट को कनेक्ट करते हुए, ठीक है. उसके अलावा बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं. यू कैन basically it results in economic growth as well, and you can grab business opportunities through it as well. Question number 6 is रिलेट फेक न्यूज़ अफेक्टिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट इवेंट्स. फेक न्यूज़ की वजह से बेसिकली जो है वो एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैल जाती है. उसके अलावा पब्लिक की जो ओपिनियन है वो चेंज हो जाते हैं, उनके बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाते हैं, उनके जो एटीट्यूड में चेंजिंग आती है, ठीक है. बेसिकली इट क्रिएट कन्फ्यूजन अलॉन्ग अमंग ऑल द पीपल. ओके. एंड फेक न्यूज़ की वजह से जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में प्रॉब्लम आती है, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 7 इज समराइज सम ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग. सोशल नेटवर्किंग बेसिकली कंट्रीब्यूट टू साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट. उसके अलावा जो है वो इसकी वजह से स्ट्रेस में रहते हैं लोग. उसके अलावा जो है प्राइवेसी का सबसे जो हम कह सकते हैं कि इसका एक मेजर ड्रॉबैक है वो है डेटा मिस यूज़ इन प्राइवेसी, ठीक है. एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया कैन कंट्रीब्यूट टू एडिक्शन. आपकी जो है वो मेंटल हेल्थ, योर आई हेल्थ. ओके.
इट्स आल्सो काजिंग इफेक्ट टू अ मेजर इफेक्ट टू दैम। एंड मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, इसकी वजह से जो है वो हम कह सकते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से लोगों में भी नाचाकी पैदा होती है, उनके एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर में। इट बेसिकली इन्फ्लुएंस पीपल बिलीव्स एज वेल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 इज interpret the dangers associated with the spread of fake news online. We have already discussed this. It basically fuels misinformation and leading to public confusion and misinformed decisions. Public के opinion को इसकी वजह से जो है वो manipulate होती है, ठीक है, and basically it create division within communities. So that's it about this question. Question number 9 is examine the computing influence on personal privacy. Computing has revolutionized personal privacy through data collection and analysis, raising concerns about surveillance in data breaches. जैसे कि अगर हम कुकीज़ की बात करें, ठीक है, या जो हमारे जो बेसिकली ट्रैकिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, वो आपके ऑनलाइन बिहेवियर को नोटिस कर रहे होते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं, बेसिकली वो आपके डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, एंड दे आर यूजिंग दिस डेटा विदाउट योर कंसर्न। ओके, question number 10 is criticize about the role computing plays in shaping educational activities. So computing has basically play a vital role in educational activities like uh, प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी हेल्प करती है। बट अगर हम इसको देखें तो जो है वो इट्स बेसिकली रिड्यूसिंग क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये हेल्प आउट तो करती है हमें, बट बेसिकली इट्स रिड्यूसिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स हमें खुद करनी होती हैं, बेसिकली इट्स इसकी वजह से जो है वो कम होती जा रही हैं, ठीक है। उसके अलावा डेटा प्राइवेसी के इश्यूज ज़्यादा हैं, सिक्योरिटी इन एजुकेशनल जो सॉफ्टवेयर। ओके, और उसके अलावा जो है वो स्किल्स जो है वो ऑब्सोल्यूट होती जा रही हैं। सो दीज आर द मेजर इश्यूज। Now we have to discuss about long questions. Question number 1 is basically इस यूनिट में more or less जितने भी हम questions और MCQs को देखेंगे वो आपस में relate कर रहे हैं, ठीक है। Basically हम इस यूनिट में डिस्कस ही computing impacts of computing को डिस्कस कर रहे हैं। So more or less हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रिकॉशंस दैट नीड टू बी टेकन टू इंश्योर द फिजिकल सेफ्टी ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। बेसिकली हमने ये देखना है कि हमारा जो टेम्परेचर है, लाइक इट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर और मॉइस्चर, उसके अलावा हमने देखना है कि हम उसको किस तरह की सरफेस पे रख रहे हैं, ठीक है। हमने उसको कहीं जो है वो ऐसी जगह पे तो नहीं रख दिया जहाँ पे कि मॉइस्चर ज़्यादा है आपकी, जो है उसकी वजह से बैटरी ड्रेन हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल डैमेज की जगह हमने इलेक्ट्रिकल डैमेज की जो है वो उससे प्रिवेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट सर्च प्रोटेक्टर्स। ओके, उसके अलावा रेगुलरली क्लीन हार्डवेयर कंपोनेंट्स टू प्रिवेंट डस्ट बिल्डअप। सो दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 इज जज द मीनिंग ऑफ यूजिंग सॉफ्टवेयर लीगली एंड एथिकली। बेसिकली सॉफ्टवेयर को लीगली और एथिकली जो है वो यूज़ करने का मतलब ये है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट कॉपीराइट लॉज इन सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस। ओके, अथराइज चैनल को ही जो है उसी आपने वो उसके कंटेंट को चूज़ करना है, ठीक है। पायरेसी को और अनअथराइज डिस्ट्रीब्यूशन को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो है वो किसी का डेटा या किसी के जो प्रोग्राम्स हैं उनको आपने विदाउट परमिशन उनको अल्टर नहीं करना, ठीक है। यू कैन नॉट मॉडिफाई दिस, बेसिकली इट्स अ साइबर क्राइम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज explain the ways users can recognize and protect themselves from online cheats and phishing attempts. सो इसमें आप जो है वो सबसे पहले अगर हम बात करें, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सस्पिशियस या अननोन लिंक्स या अटैचमेंट्स को तो ओपन नहीं करें, ईमेल्स वगैरह मैसेजेस को, ठीक है। उसके अलावा यू हैव टू इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड्स एज वेल एंड रेगुलरली अपडेट योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ओके, question number 4 is comment on the key ways in which social networking platforms have revolutionized communication and connectivity in the digital age. Additionally, reduce the positive impacts of these changes on society.
बेसिकली अगर हम बात करें तो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की वजह से वी कैन कम्युनिकेट ग्लोबली, ओके, और किसी भी जो है वो विदाउट एनी बैरियर वी कैन कम्युनिकेट, वी कैन शेयर इन्फॉर्मेशन एज वेल, ठीक है, रियल टाइम जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर हम कर सकते हैं, उसके अलावा नॉलेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, इवन अमंग इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ एज वेल, ठीक है, और इसके अलावा जो है हम अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कोलीग्स इवन और हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट हम इनके साथ कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। And positive impacts are basically global reach, efficiency, access to information, and economic growth. Okay. Alright, so question number 5 is describe the risks associated with online gaming and social networking for children. बेसिकली जब हम ऑनलाइन गेमिंग की या सोशल नेटवर्किंग की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन, सो वी नो दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. बेसिकली मोस्टली चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, साइबर क्राइम एंड ऑनलाइन प्रेडिएटर्स एज वेल. एंड एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से जो है वो फिज़िकल हेल्थ डैमेज होती है, मोस्ट प्रॉब्ली आई हेल्थ, ओके, एंड इट आल्सो अफेक्ट देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस एज वेल. मोस्टली जो चिल्ड्रन होते हैं वो स्कैम्स में या फिशिंग अटेम्प्ट्स में, उसके अलावा उनकी जो प्राइवेसी और सेफ्टी है वो डिस्टर्ब होती है इसकी वजह से, ठीक है. सो इट्स ऑलवेज रिमेन क्रूशियल फॉर पेरेंट्स टू मॉनिटर देयर चिल्ड्रंस ऑनलाइन एक्टिविटीज़. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 इज़ devise steps for government and business in leveraging computing to drive economic growth and innovation. फर्स्टली अगर हम बात करें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो इन्वेस्ट किया जाए सो इसकी वजह से सॉलिड प्रोग्रेस होगी, ठीक है. सेकेंडली अगर सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाए स्मॉल बिजनेसेस के लिए, सो इट विल आल्सो लेड एन इम्प्रूवमेंट, ओके. Alright, so last question is compare the impact of online platforms and algorithms on cultural diversity and the spread of global or local culture. बेसिकली इसको हम एक एग्जांपल को जो है वो लेकर समझते हैं, ठीक है. इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू. लेट्स सपोज कि आप जो है वो अपने सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, और सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो आपको कोई किसी भी सर्टेन जो है वो कल्चर या लैंग्वेज को, मतलब कोई भी इस तरह की वीडियो आपको दिखाती है, ठीक है, और बेसिकली लेट्स सपोज कि आप थोड़ी देर के लिए उस वीडियो पे स्टे कर रहे हैं, यू हैव सीन इट फॉर अ वाइल, ओके, तो उसकी वजह से जो है वो एक बबल बन जाता है, ठीक है, और उस बबल की वजह से जो है वो आपको सिमिलर कंटेंट शो होने लगता है. आप जब जब स्क्रॉल करते रहते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको वही सेम कंटेंट शो हो रहा होता है, ठीक है, लिमिटिंग योर एक्सपोजर टू डाइवर्स कल्चर्स, ठीक है. और अगर हम बात करें कि दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि कोई भी जो वायरल वीडियो है, ठीक है, वो किस तरह से जो है वो क्विकली एकदम से वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाती है, ठीक है. ओके, दैट्स इट. यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है, ठीक है. आई होप कि आपको ये कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डू लेट मी नो इन कमेंट्स. ऑलराइट, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल. अपना ख्याल रखिएगा.